السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے، اس کی کیا معاملات ہے۔ بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی اس حوالے سے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے ویڈیو ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے کیا معاملات ملتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ مرحوم یعنی کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے اس کا، اور اس کی طرف سے اگر قربانی کی جائے تو وہ جائز ہوگی؟ کیا معاملات ہوں گے؟ اگر اس نے میت نے وصیت کی ہے تو کیا معاملات ہوں گے؟ اگر وصیت نہیں کی ہے تو کیا معاملات ہوں گے اس کے؟ تو آج کی ویڈیو میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کے سامنے ایک ایک چیز خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ تک یہ نالج پہنچے۔ تو چلے علماء کرام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا الیاس قادری صاحب کو موقف اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر کسی مرحوم کی طرف سے قربانی دی جائے تو کیا قربانی دینے والے کو اپنی قربانی دینا بھی لازم ہوگا؟ اگر میت نے وصیت کی ہے تو میت کی طرف سے کرے گا قربانی، تو میت کی طرف سے وہ قربانی ہوگی، اور خود پر واجب ہے تو خود بھی کرنی ہوگی۔ اور اگر میت نے وصیت نہیں کی اور ویسے ہی قربانی کر رہا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کی اپنی قربانی اس میں ادا ہو گئی۔ ایصال ثواب تو سبھی کر سکتے ہیں، ایک قربانی کا ثواب ساری امت کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کس نے کہا؟ دوستو آپ کے سامنے الیاس قادری صاحب نے یہ موقف پیش کر دیا کہ جو ہے میت کی طرف سے بھی جو ہے قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے وصیت کی ہے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، اور وصیت نہیں بھی کی ہے تو اس کی خود کی بھی ہو جائے گی۔ اگر وصیت کی ہے تو علیحدہ سے اس کو قربانی کرنی پڑے گی، اور اپنے اوپر بھی اگر فرض ہے تو وہ الگ سے کرنی پڑے گی۔ اور اگر وصیت کسی نے نہیں کی ہے اور وہ مرحومین کو جو ہے اس کی جو ہے قربانی ان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو مرحومین کی بھی قربانی ہو جائے گی اس کے ذریعے، اس کی خود کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہ معاملہ آپ کے سامنے الیاس قادری صاحب نے پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مرشد صاحب کو موقف لیتے ہیں اس حوالے سے کیا معاملات ہیں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے، تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے، تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا۔ تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا۔ تو بعض جی نہیں، مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا، جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو نا، تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے، لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو، تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے۔ لیکن جب آپ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہو تو پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے، صحیح ہے نا، اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، پورا ثواب اس کو ملے۔ دونوں قول ہیں علماء کے، تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں، اماں کے لیے الگ کر لیں، افضل یہی ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں، ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے۔ اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے۔ دیکھیے
सो दोस्तों आपके सामने मैंने मुफ्ती तारिक मुस्ताफ़ साहब का ही मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से, और उन्होंने मौक़िफ़ यही रखा है आपके सामने कि आप मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, यानी वालिदैन की तरफ से आप वालदा और वालिद साहब दोनों इंतकाल कर चुके हैं तो दोनों की तरफ से आप कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन ये है मामला, अगर आपने एक कुर्बानी का जानवर लिया है, उसके अंदर 7 हिस्से हैं, तो उसमें से ये नहीं हो सकता कि आप जो है मैयत की तरफ से भी उसमें हिस्सा डालें, क्योंकि वो सदक़े में शुमार हो जाएगा। फिर सदका जो है उसका गोश्त आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका गोश्त आपको बांटना पड़ेगा पूरा का पूरा, और उसमें कुर्बानी आपकी शामिल नहीं होगी, फिर वो कुर्बानी अलग से करनी पड़ेगी आपको। अगर मैयत ने वसीयत की है फिर तो आप उसके अंदर जो है कर सकते हैं, लेकिन वसीयत नहीं की है तो फिर उसके लिए आपको जो है एक जानवर सदका करना पड़ेगा, और सदक़े का मामला ये है उसका गोश्त आप खुद नहीं खा सकते और आपको लोगों में तकसीम करना पड़ेगा उस गोश्त को। तो ये मामला थे। बहरहाल आपके सामने मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सईद साहब को मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहता है। अल्लाह के रसूल करनी, मैं एक आम बात मैयत के ताल्लुक से कर देता हूँ। मैयत के नाम से कुर्बानी के ताल्लुक से उलमाए सलफ़ में इख्तिलाफ है, किया जाएगा या ना किया जाएगा। इस मामले में जो उनकी राय है वो ये है कि अगर मैयत के नाम से कुर्बानी की जाती है तो कुर्बानी का सवाब तो उस शख्स को मिलेगा जिसने की, उस कुर्बानी का गोश्त तो इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर्फ गरीबों में बांटेंगे, उस गरीबों में गोश्त बांटने का सवाब मिलेगा उस मैयत को। बात समझ रहे हैं? सलफ में इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ में पहले उलमा की राय ये है कि जो कुर्बानी मैयत के नाम से होंगी सवाब मैयत को नहीं, सवाब करने वाले को मिलेगा जिसका पैसा था, और वो शख्स जिसके नाम से की जा रही है वो गोश्त को अगर लेता है और पूरे गोश्त को तकसीम करेगा गरीबों में तो गोश्त को तकसीम करने का सवाब मिलेगा। इसलिए कि मैयत को अगर खाना खिलाया तो सवाब मिलता है, मैयत के नाम से पैसे दिया सदका तो सवाब मिलता है, तो मैयत के नाम से गोश्त दिया तो सवाब तो मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? वो राय उन्होंने दी है कि अगर कोई मैयत के नाम से करता है तो फिर पूरा गोश्त सदका करना पड़ेगा, और उसका सवाब किसको मिलेगा? फिर मैयत को। वो खा नहीं सकता इसलिए कि वो सदक़े में आएगा, कुर्बानी का नहीं मिलेगा। दूसरा, उस मैयत को कुर्बानी का सवाब मिल सकता है जिस मैयत ने जिंदगी में कुर्बानी की वसीयत की हो अपने बच्चों से। जैसा कि बाप बेटे से बच्चों से करा है, देखो मेरे बाद भी अगर तुम्हारी ताकत हो तो जरूर मेरी कुर्बानी करना। ताकत हो तो ये नहीं कि बेटा अपनी नहीं कर और बाप की करा मैयत वाली, मैं जिंदों को सवाब असल है, जो गुजर चुके उनका तो हुआ। ठीक, तो फिर समझ लो बच्चा सोच रहा है कि भाई मेरे पास ताकत तो है, आज वालिद की भी कर देता हूँ, तो कोई मसला, इसलिए कि वालिद ने या मैयत ने मरने से पहले वसीयत की थी। बिल्कुल तो वसीयत जो कर जाए उसकी आप कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हिस्सा डालते हैं भाई, को जो सवाल था। और होता ये कि जानवर में 6 हिस्से होते हैं हमारे पास हिंदुस्तान में, बड़े जानवर। एक तो रसूलुल्लाह का रहता, फिर 6 लोग मिलके 7 हिस्से स्पॉन्सर करते हैं, मतलब एक हिस्से में सब कुछ 6 लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा डालना पड़ता। 2500 का हिस्सा 250 रुपए एक्स्ट्रा डालो, चूंकि रसूलुल्लाह का भी हिस्सा है, 7 लोग 250 डाल के एक हिस्सा बना। इसका क्या मामला? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से कभी भी कुर्बानी करने की वसीयत नहीं की थी। जो रिवायत मिलती है अबू दाऊद की, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु उसके रावी हैं, वो फरमाते हैं हदीस लेकिन ज़ईफ है, फिर भी बयान कर रहा हूँ जो कि वजह बनती है लोगों की कुर्बानी की। अगर उसको बहस की हद तक मान लिया है सही, तो भी उससे क्या बात निकलती वो रखना चाह रहा हूँ। बहस की हद तक सही मान भी लिया जाए तो उससे क्या बात निकलती वो रख रहा हूँ आपके सामने। पहले हज़रत अली रजी अल्लाह रसूलुल्लाह, हदीस में अल्फाज है कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद भी एक जानवर ज़ुबह करते थे। किसी ने कहा अली तुम ज़ुबह क्यों करते हो? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी। तो इस ज़ईफ हदीस को ले भी ले जाते से मसला साबित यह होता है जो मैयत वसीयत कर जाए उसकी कुर्बानी जायज है ना, रसूलुल्लाह ने उनको की थी। कभी हज़रत अबू बकर ने कुर्बानी की अल्लाह के रसूल की, जबकि हज़रत आयशा जिंदा थी रज़ी अल्लाह अन्हा, वो बीवी थी अल्लाह के रसूल की, ये ससुर है, दोनों ने किया कभी। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा थे जो आपके ससुर थे, उनकी बेटी हफ्सा जो अल्लाह के रसूल की बीवी थी वो भी जिंदा थी आपकी वफात के बाद, दोनों ने किए कभी कि मेरे शौहर को सवाब पहुंचे, मेरे दामाद और मेरे नबी को सवाब पहुंचे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह जो कि आपके 2 मरतबा दामाद बने, आपने कभी अपने ससुर के लिए किया क्या? खाली अली रज़ी अल्लाह कर रहे हैं। अली रज़ी अल्लाह की वफात के बाद किसी और ने किया कि हसन हुसैन और दीगर ने रज़ी अल्लाह अन्हुमा? नहीं। तो पता चला अगर इस ज़ईफ रिवायत ले भी ली जाए तो पता चलता है जो मैयत वसीयत करे उसके तरफ से कुर्बानी हो सकती है, सबके लिए नहीं है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह ने हमको वसीयत नहीं की है, तो लिहाजा उस हिस्से की जरूरत नहीं है। लोग हर जानवर में एक डालते, तो इंडिया में जनरली एक जानवर सिर्फ 6 हिस्से होते, एक रसूलुल्लाह फिक्स सब डाल देते। उस पर फिर ये कि भाई तुम भी पैसे दो, एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ते हैं। अब ये आपकी मजबूरी भाई, वो पैसों को आप सदका समझ के दे दीजिए कि क्या करना है, क्योंकि वो 7 हिस्से होते ही नहीं, 6 हिस्से होते हैं, और वो 6 हिस्से वालों को मिलकर 7वें हिस्से को स्पॉन्सर करना पड़ता है। ठीक, तो बहरहाल ये आपकी मजबूरी है। ऐसी जगह जाइए जहाँ वो हिस्सा नहीं लिया जा रहा तो खुद कीमत कम हो जाती है उसकी। बहरहाल ये डिपेंड है आपके ऊपर। सो दोस्तों आपके सामने मैंने एडवोकेट फैज़ सईद साहब का भी मौक़िफ़ रख दिया इस हवाले से। उन्होंने भी यही मौक़िफ़ पेश किया है कि मैयत अगर वसीयत कर जाए इस हवाले से तो आप कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन अगर वसीयत मैयत ने नहीं की है तो उसके लिए फिर सदका होगा, और सदक़े के अंदर आप गोश्त खुद नहीं रख सकते,
लोगों तक आपको जो है गरीब लोगों में गोश्त को बांटना पड़ेगा। तो बहरहाल आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। ये रवायत है जिसकी वजह से थोड़ा इशू आजकल चल निकला है, वो जामिया तिर्मिज़ी और सुनन नबी दाऊद में है, और ये ज़ईफ़ रवायत है। और ये वो रवायत है जिसमें वो सुकम है जो मैं पहले बयान कर चुका कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि मैं हर साल एक मेंढा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बान करूं। तो 2 मेंढे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिया करते थे, एक अपनी तरफ से और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। तो इस हदीस में वही शरीक बिन अब्दुल्ला अल कादी जो है वो मुदल्लिस रावी हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक समा की तसरीह ना हो। सही मुस्लिम के मुकदमे में ये पेट रूल है, और यही रूल है जिसकी वजह से वो खतरनाक रवायत भी ज़ईफ साबित होती है जो मुस्नद इमाम अहमद में है और अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की उसमें भी मौजूद है, और मिशकातुल मसाबी में भी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4902 नंबर हदीस है। अब ये हदीस मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो रवायत दर्ज है, लेकिन ये ज़ईफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने जाहली नसब पर फख्र करे तो उसको कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख लो, और ये बात कनाए से ना करो, डायरेक्ट करो। वलियाज़ु बिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये बात नहीं फरमा सकते। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म व हया थी, बेशक ये हो ही नहीं सकता। तो उस रवायत में हसन बसरी मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। अगर ये किसी ने सही माननी है फिर वो भी सही मानेगा। तो ये रवायत बिल्कुल ज़ईफ है, और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी इस रवायत के तहत 1495 नंबर रवायत के तहत एक मसला भी उन्होंने सॉल्व किया है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है रहमतुल्लाह अलैह, जो तबा ताबईन में से हैं, अल मुतवफ़ा 181 हिजरी, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं। वो कहते हैं कि मय्यत की तरफ से कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में। यानी उन्होंने अगर इस हदीस को लिया भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुसूसियत के तौर पे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से चलो कुर्बानी कर दी, किसी को अगर ज़ौफ़ क्लियर नहीं उस हदीस का, कोई बिदअत का फतवा नहीं, आज भी वो कर लेता है जिसको ये बात पता नहीं है। हाँ, पता चल जाए फिर बचने में आफियत है, बिदअत का फतवा हम फिर भी नहीं लगाते। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मय्यत की तरफ से कुर्बानी ना की जाए, अलबत्ता मय्यत की तरफ से जो जानवर ज़बा किया जाएगा वो सदका फिर होगा। और फिर फरमाया कि इस सारे को ही कुर्बान जो किया हुआ जानवर है, सारे को ही फिर सदका करना होगा, अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि सदके का गोश्त है। और इसमें यह बात याद रखिए, ये बकरा भी फिर अलग से करना होगा। गाय में हिस्सा डाल दिया अगर, 7 में से एक हिस्सा किसी और के लिए जो फौत शुदा है कि मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से या फलां की तरफ से, तो सारों की कुर्बानी खतरे में पड़ गई। और ये बात समझ लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस के तहत मय्यत को 3 अमाल का सवाब पहुंचता है, उनमें से एक अमल यह भी है कि नेक औलाद के अमाल का सवाब भी पहुंचता है, उनकी दुआओं का सवाब पहुंचता है। दूसरा, इल्म की बात जो उसने अपनी जिंदगी में की वो मिलना भी चाहिए, और तीसरा सदका जारिया जो अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया। लेकिन ये जो बात है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम कुर्बानी करते हैं, हमारे माँ बाप जिंदा हैं या फौत हो चुके हैं, उन तक सवाब पहुंचेगा, और पूरी उम्मत की कुर्बानी का सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरिए हिदायत बने हमारे लिए। बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमारे हर अमल का सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा अमाल में भी जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया इस हवाले से। और मय्यत की तरफ से जो है मरहूमीन वालदेन की तरफ से या किसी की भी तरफ से आप जो है करेंगे तो वो सदक़े में जाएगा, अगर वसीयत नहीं की है तो। अगर वसीयत की है वालदेन ने इस हवाले से तो आप कुर्बानी कर सकते हैं, हिस्सा डाल सकते हैं। लेकिन अगर वसीयत नहीं की है तो अगर आप अपने जानवर के अंदर एक हिस्सा मरहूमीन की तरफ से भी, अपने वालिद की तरफ से या वालदे की तरफ से भी डालते हैं तो वो पूरा का पूरा जो है आपकी कुर्बानी नहीं होगी उसके अंदर, और पूरा का पूरा गोश्त जो है आपको सदका करना पड़ेगा। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे जो बात होती है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो होती है फ़िरका वारियत से बाहर निकल के। फ़िरका वारियत से दायरे से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको चीज़ें एक एक चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, तो मैं याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू
شبكته